مجھے معاف کرنا، مگر یہ ضروری ہے۔ کہتے ہی وہ اپنی شرٹ وجود سے جدا کرتا، اس لڑکی کے کپڑے اتار کر معمولی سی شرٹ پہنا کر اس کے ساتھ بستر میں گھسا۔ طوفانی بارش میں وہ بے ہوش ملی تھی۔ اسے جب ڈاکٹر کے کہنے پہ اسے اپنے جسم کی حرارت دینا، وہ اس کی جان بچانے لگا۔ اس کی نازکی دیکھ کر وہ خود پر مزید قابو نہ رکھ سکا اور پوری رات اس کے وجود سے کھیلتا رہا۔ اگلی صبح وہ اس فلیٹ سے غائب تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ڈھونڈو اس کو۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، مگر اس لڑکی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب اچانک وہ اس سے مل گئی، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اس کی۔ اس نے اپنے لبوں کو پانی سے تر کرتے ہوئے اس کے خشک لبوں پر آہستگی سے اپنے لب پھیرے، مگر مقابل اب بھی ساکت و جامد تھے۔ تم کب آنکھ کھولو گی حریم؟ اس نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، مگر جواب میں خاموشی ہی ملی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ لڑکی کوئی بھنگ پی کر سوئی ہو اور اب تک اس کے نشے سے باہر نہ آ سکی ہو۔ اذلان نے اس کے سر کو اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور گہرے لہجے میں بڑبڑایا، تمہاری یہ بے ہوشی بھی مجھے بے حال کر رہی ہے۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور اپنی ناک سے اس کے کان کو ہلکے سے ٹریس کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ اب اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے خود بھی ایک عجیب بے چینی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ آج کی دیاڑی کہاں ہے تمہاری؟ وہ نحیف اور مرجھائے ہوئے وجود کے ساتھ دہلیز پار کرنے ہی والی تھی کہ تائی کی چپتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں زہر بن کر ابھری۔ آج کسی نے کام نہیں دیا تائی، میں خالی ہاتھ آئی ہوں۔ وہ کپکپاتی آواز میں سچ بیان کرتے ہوئے پلٹی تو اس سنگ دل عورت نے جھپٹ کر اس کا گریبان مٹھی میں جکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ پھر ایک کڑاڑا تماچا اس کے پھیکے چہرے پر رسید کر دیا، میری چھت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ نکلو یہاں سے، اور جب تک رقم کا بندوبست نہ ہو واپس مت آنا، ورنہ تمہارے تایا آئے تو تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ وہ اس کے الجھے ہوئے بال جھٹکے ہوئے اسے دروازے کی طرف دھکیل کر چیخی تو حریم کی آنکھیں درد کے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگے۔ باہر آسمان پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے اور طوفان آنے والا ہے تائی اماں، میری التجا سن لیں، میں بہت بیمار ہوں، کل صبح ہی کوئی بندوبست کر لوں گی۔ وہ روتی ہوئی اس کے قدموں میں گر گئی، مگر اس بے رحم عورت نے اسے لات مار کر دور ہٹا دیا اور بھاری دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ آسمان پر کڑکتی ہوئی بجلیاں حریم کے وجود کو ہلا کر رکھ رہی تھیں۔ وہ بند دروازے کو پیٹتی رہی، دہائیاں دیتی رہی، مگر اندر سے سناٹے کے سوا کچھ نہ ملا۔ آخرکار وہ بے بسی اور لاچاری کا بوجھ اٹھاتے لرزتے قدموں کے ساتھ اندھیرے راستوں پر چل پڑی۔ اب اسے اپنی سانسوں کی یہ ڈور بھی بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ زندگی کی تلخیوں سے اس قدر اکتا چکی تھی کہ موت ہی اسے اپنی واحد نجات دکھائی دینے لگی تھی۔ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ابتدا میں تایا تائی نے اسے اپنا کہہ کر سینے سے لگایا تھا، مگر ان کی یہ شفقت صرف اس کی وراثت تک محدود تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس کی جائیداد کو اپنی عیاشیوں کی نظر کیا، ان کا اصل چہرہ اس کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ اب وہ اسے گھناؤنی اور غیر اخلاقی راہوں پر چلنے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ اسے بنیادی تعلیم سے بھی محروم رکھ کر اس کے مستقبل کو تاریکی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ حریم کے لیے اب اس دنیا میں کہیں کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی، کیونکہ وہ اسے گناہوں کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی تقدیر پر نوحہ کنا، ٹوٹے دل اور بجھتی امیدوں کے ساتھ صرف اس آخری ٹھکانے کی تلاش میں تھی جہاں وہ ان صفاک لوگوں سے ہمیشہ کے لیے دور ابدی نیند سو سکے۔ تم کدھر کی تیاریاں کر رہے ہو؟ حیات حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے کہ اچانک عریش نے اذلان کو تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا تو فوراً سوال داغ دیا، ان بدتمیزوں نے میری بزنس ڈیل کے تمام کاغذات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آج اگر ان کا غرور خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی اذلان نہیں۔ وہ شدید تیش کے عالم میں دھاڑتا ہوا باہر کی جانب لپکا تو عریش بھی فوراً اس کے پیچھے قدم سے قدم ملا کر دوڑ پڑی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اذلان طوفان بن کر نکلے اور عریش اس کا ساتھ نہ دے؟ ناممکن۔ ان دونوں کا تو روز کا یہی تماشا ہے، ہم تو ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ زویا بیگم نے دونوں کو جاتے دیکھ کر بیزاری سے کہا تو دسترخوان پر موجود باقی سب افراد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، بلکہ ان کا تو برسوں سے یہی دستور چلا آ رہا تھا۔ جب بھی سب سکون سے دو نوالے کھانے بیٹھتے،
कोई ना कोई हंगामा जरूर बर्पा हो जाता था। आप भी अपनी तवज्जो खाने पर रखें। क्यों ख्वामखा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? नवाब हयात ने सूरत हाल संभालते हुए मुस्कुराकर अपनी अहलिया को देखा, तो नौजवान नस्ल ने एक साथ कहका लगाया और दोनों को छेड़ना शुरू कर दिया। यही था हयात हाउस का शाही खानदान, जहाँ किसी के उदास रहने की गुंजाइश ही ना थी। उम्र का फर्क चाहे जितना भी हो, यहाँ हर शख्स दूसरे के रंग में रंगा हुआ था। जब भी ये पूरा काफिला इकट्ठा होता, सब एक ही रंग फिजा में डूब जाते और हवेली हंसी मोहब्बत और अपनाइयों से गूंज जाती। ठंडे हो जाओ और मुझे ये तो बताओ कि ये खबर तुम तक पहुंचाई किसने है? अजलान हयात का पारा इस कदर चढ़ा हुआ था कि उसके गिरदो नवा की फिजा में एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। ऐन इसी वक्त अरीश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कदरे पुरसकून करने की कोशिश की, ताकि कम से कम वो इस शख्स का नाम तो बता सके जिसने उसे इतला दी थी। अरीश बखूबी जानता था कि गुस्से के मामले में अजलान किस कदर तंदो तेज मिजाज रखता है, इसलिए उसने पहले ही अपने खास आदमियों को सख्ती से हिदायत दे रखी थी कि कोई भी हसास मामला बराह रास्त उस तक पहुंचाया जाए, ताकि वो खुद हालात को संभाल सके। मगर आज ना जाने किस नासमझ ने ये असूल तोड़ते हुए सीधा अजलान को खबर दे दी थी, जिसने ना सिर्फ अजलान बल्कि अरीश का खून भी खौला दिया था। फिरोज ने मुझे कॉल की थी। अजलान ने मोबाइल स्क्रीन पर मुसलसल उंगलियां चलाते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया, तो अरीश का दिल चाहा कि उसी लम्हे जाकर फिरोज का सर दीवार से दे मारे। वो सबकी नजरों में अजलान का सबसे वफादार आदमी था, लेकिन इतनी अहम मालूमात बराह रास्त अजलान तक पहुंचा देना कहाँ की दानिशमंदी थी? ये बात अरीश की समझ से बालातर थी। अभी वो मजीद कुछ कहने ही वाला था कि अजलान के मोबाइल पर एक बार फिर फिरोज की कॉल आ गई। आखिर उस लड़के को चैन क्यों नहीं है? अरीश ने झुंझलाकर फोन उसके हाथ से छीन लिया और कॉल रिसीव करते ही बोला, फिरोज एक काम करो, आज ही अपनी बीवी को तलाक दे दो। दूसरी तरफ से फौरन फिरोज की हकलाई हुई आवाज आई, या अल्लाह की पनाह सर, भला मैं अपने शरीके हयात को तलाक क्यों दूंगा? उसके औसान जैसे खता हो गए थे। अरीश ने तंसिया अंदाज में कहा, यकीनन तुम्हारी इस जनाना आदत से वो भी तंग आ चुकी होगी, जो तुम हर 2 मिनट बाद फोन करके घर घर की खबरें सुनाते फिरते हो। इस वक्त अरीश शाह का बस नहीं चल रहा था कि अगर फिरोज सामने होता तो वो उससे अच्छी खासी खबर लेता, जबकि असलान अपनी जगह खामोश बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। सर आप ये कैसी अजीबो गरीब बातें कर रही हैं? फिरोज तकरीबन रोने वाली हालत में पहुंच चुका था। अरीश ने बेजारी से सर झटका और बोला, ये जो तुम हर वक्त फोन के गप्पे हांगते रहते हो ना, इससे बाज आ जाओ, वरना मैं खुद तुम्हारी तलाक करवा कर अजलान के साथ तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगा। फिर दोनों कमरे में बैठकर एक दूसरे की बाहों में महू होकर चोगलियां करते रहना। अपनी साड़ी भड़ास तंजी अंदाज में निकालने के बाद उसने झटके से काल बंद कर दी। सूरत हाल जितनी संगीन थी, अजलान का कहका उतना ही बुलंद था। वो मेरे खुदा अरीश, वो हंसते हंसते आंखों में आए पानी को साफ करने लगा। अब उसे बखूबी समझ आ चुकी थी कि अरीश फिरोज की हरकतों से इस कदर चिढ़ता क्यों है। अब तुम भी खूब हंस लो अजलान, अरीश ने मुंह बनाते हुए कहा, तो अजलान का दिल उसके बिगड़े हुए मगर मासूम चेहरे पर बेख्तियार प्यार से भर गया। शाह हवेली की हुक्मरानी हयात शाह के मजबूत हाथों में थी और उनकी शरीके हयात जोया बेगम थी, जिन्हें सब जीजान के नाम से पुकारते थे। इन दोनों की शादी खानदानी रवायत को निभाते हुए बाहमी रजामंदी से हुई थी और उनके 4 बच्चे थे, जिनके नाम कासिम शाह, शाइक शाह, जुनैद शाह और मेहरीन शाह थे। कासिम शाह की शादी अमारा बेगम से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, जिनमें बड़ा बेटा 27 साल बिजनेस टाइकॉन अजलान शाह था, जबकि छोटी बेटी नूर शाह थी, जो अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर शाइक शाह थे, जिनका इकलौता बेटा अरीस शाह था, जो बिल्कुल अजलान की तरह कारोबारी दुनिया में कदम जमा चुका था और अपनी जहानत से हर जगह धाक बिठा रहा था। तीसरे नंबर पर जुनैद शाह थे, जिनके 2 बच्चे थे, जिनमें 21 साल जारिम शाह एक इंतहाई शरारती और जिंदा दिल लड़का था, जबकि छोटी बेटी आलिया शाह भी 17 साल की थी और पूरी हवेली की सबसे चहेती और लाडली बेटी थी। इन सब के बाद मेहरीन शाह थी, जिन्होंने अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद से शादी की थी और उनके इसी फैसले के बाद शाह हवेली से उनका ताल्लुक बिल्कुल मुनक़ता हो चुका था।
यही वजह थी कि तवील अरसे तक कोई भी नहीं जानता था कि मेहरीन शाह किस हाल में है। आसमान से बरसने वाली बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे आग के शोले जमीन पर बरस रहे हों। जबकि रात का स्याह अंधेरा अपनी तमाम तर हौलनाकियों के साथ हर सिमत फैल चुका था। सुनसान चेहरा पर हरीम का वजूद किसी कटी हुई पतंग की मानित लरस रहा था, और उसके नंगे पांव कीचड़ में धंसते हुए उसे मजीद निढाल किए जा रहे थे। कुदरत ने उसे ऐसा हुस्न अता किया था कि अगर वो पत्थर पर भी नजर डाल देती तो वो मोम बन जाता, मगर उसके नसीब में शायद सिर्फ तन्हाई, महरूमियां और ठोकरें ही लिखी गई थी। मुसलसल चलते चलते वो बुरी तरह थक चुकी थी, और उसके जिस्म का एक एक रेशा बुखार की शिद्दत से तड़प रहा था। जब से सामने फैला खौफनाक अंधेरा उसे मौत की दावत देता महसूस हो रहा था। मेरी तकदीर में आखिर ये कठिन सफर ही क्यों लिखा गया है? क्या मुझे अब तक सुकून का एक सांस भी नसीब नहीं होगा? उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, मगर जवाब में सिर्फ बादलों की गर्ज और बिजली की खौफनाक कड़क सुनाई दी। वो बमुश्किल दो कदम और चल पाई थी कि एक तेज रोशनी ने उसकी आंखों को खैरा कर दिया था, और वो लड़खड़ाकर सड़क के किनारे ढेर हो गई थी। अजलान हयात की गाड़ी के टायर सड़क पर चीखते हुए रुके, और अरईश के साथ उसका दिल भी हलक में आकर अटक गया था। अगर एक इंच की भी दूरी कम होती तो आज वो अपने ही हाथों से उस लड़की को रोन डालते। गाड़ी का दरवाजा जोर से खुला, और अजलान का जलाल से भरा वजूद बारिश में बाहर आ गया। उसकी नजर फौरन उस लड़की पर जा ठहरी जो होशो हवास से बेगाना कीचड़ में पड़ी थी। तुम क्या पागल हो चुके हो, या तुम्हारी अकल ने काम करना छोड़ दिया है कि इस अंधेरी रात में इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हो? अजलान की गरजदार आवाज बारिश के शोर में कहीं गुम हो गई थी, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजरें उस लड़की के चेहरे पर जम गईं। उसके बिखरे हुए बाल चेहरे की नजाकत को छुपा रहे थे, मगर उसका लरसता हुआ वजूद अजलान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। अरे उठो, वो उसे मुखातिब करते हुए बोला, मगर हरीम पर उसकी आवाज का कोई असर न हुआ। सुन रही हो तुम मेरी बात? वो झुककर उसके कंधे को हिलाने लगा, तो हरीम का चेहरा पलटकर उसके सामने आ गया। वो किसी परियों की शहजादी का रूप लग रही थी, जिसकी दमकती रंगत बारिश के कतरों से मजीद निखर गई थी। अरीश भी उसके करीब आ खड़ा हुआ, और दोनों की नजरें उसके चेहरे की नकूश पर ठहर गईं, जो किसी जाने पहचाने रिश्ते की खामोश गवाही दे रहे थे। ये हो ही नहीं सकता कि किसी के खदोखाल तो हमारे खानदान से इतने ममासलत रखते हों। अरीश की सरगोशी अजलान के कानों से टकराई, तो उसने उसे खामोश रहने का इशारा किया। मैं अभी उसकी जान बचाना चाहता हूँ, बाकी तमाम सवालों के जवाब वक्त देगा। ये कहते हुए असलान ने उसे अपनी मजबूत बाजू में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ओह, तो अब तुम्हारी हमदर्दियां इस हद तक पहुंच गई हैं कि एक अजनबी लड़की के लिए इतने बेताब हो रहे हो? क्या तुम्हें यकीन हो गया है कि ये वही है जिसकी हमें तलाश थी? अरीशु से छेड़ने की कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। बकवास बंद करो और गाड़ी स्टार्ट करो, वरना आज तुम्हारी ये जुबान काट कर रख दूंगा, अजलान ने सख्त लहजे में कहा। मगर अरीश के होंठों पर बदसतूर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। बादशाह सलामत अपनी मलका को उठाकर ऐसे ले जा रही हैं जैसे बरसों से उसका इंतजार कर रहे हों। अजलान ने गुस्से से उससे घूरा, तो अरीश हंसता हुआ ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अजलान पिछली नशिस्त पर हरीम का सर अपनी गोद में रखे बैठा था, और उसकी ठंडी पेशानी पर हाथ रखते हुए खुद को कोस रहा था कि आखिर उसे इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी। मगर उसके चेहरे की वो नकोश, उफ, वो पागल होने के करीब था। अगर ये वाकई ही वही लड़की थी तो फिर उसे घर से बाहर निकलने ही किसने दिया था? अगर उसकी जगह कोई दरिंदा आ जाता तो क्या वो उसे जिंदा छोड़ देता? यही सोच सोच कर असलान का दिमाग मग से उड़ा जा रहा था। दूसरी जानिब हरीश रास्ते भर अपनी बकवास जारी रखे हुए था कि अगर ये वाकई ही वही लड़की निकली तो अजलान की किस्मत बदल जाएगी, और उसे बैठे बैठाए इतना खूबसूरत तोहफा मिल जाएगा। अजलान का पारा अब इस हद तक चढ़ चुका था कि उसे शिद्दत से अरीश का मुंह तोड़ने का दिल कर रहा था। खामोश हो जाओ, अब अगर एक लफ्ज भी तुमने बोला तो मैं तुम्हें इस चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। अजलान की गरजदार धार सुनकर अरीश ने फौरन अपने होंठों पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि इस वक्त अजलान गुस्से की आखिरी हद तक पहुंच चुका है।
कुछ ही देर बाद गाड़ी फ्लैट के बाहर आकर रुकी और अजलान हरीम को अपनी बाहों में उठाए तेजी से अंदर की जाने बढ़ गया। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हो। खैर एंजॉय करो शाह, मैं कल जरूर आऊंगा ताकि तुम्हारा और इस लड़की का हाल अहवाल पूछ सकूं। अरीश ने शरारत भरे लहजे में कहा तो अजलान ने उसे सख्ती से शटअप कहा और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर हरीम की नफ्स अब भी धीमी रफ्तार से चल रही थी, जबकि अजलान का दिल किसी अनदेखी आग में चल रहा था। वो जानता था कि अगर ये लड़की वाकई उसके खानदान की कोई निशानी निकली तो वो इन तमाम सफाक लोगों को सफाई हस्ती से मिटा देगा, जिन्होंने उसे इस हाल में दरबदर होने पर मजबूर किया था। उसने नरमी से हरीम के बिखरे हुए बाल समेटे और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। अब तुम मेरे हसार में हो और तुम्हें कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। वो उसके करीब बैठा खुद कलामी कर रहा था और अपने दिल में इंतकाम की एक नई फसल बो रहा था। हरीम की सूरत में जैसे उसे अपने खोया हुआ मासी मिल गया था और अब वो उसे किसी भी कीमत पर खुद से जुदा नहीं होने देगा। फ्लैट की खामोश फिजा में उसके दिल की धड़कनें और भी तेज महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे शिद्दत से एहसास हो चुका था कि ये रात उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। वो हर सूरत उस रात से पर्दा उठाकर रहेगा कि आखिर ये लड़की किसकी अमानत है और उसे इतनी अजियतें क्यों झेलनी पड़ी। अब असलान के लिए हरीम की जान और उसकी हिफाजत ही सब कुछ थी और वह दुनिया की हर हद पार करके उसका मुहाफिज बनने का अज़्म कर चुका था। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ हरीम के लिए नरमी और शफकत थी, मगर बाकी दुनिया के लिए खौफनाक तूफान अंगड़ाइयां ले रहा था। वो अब किसी को माफ करने के मूड में नहीं था, क्योंकि जिंदगी के इस अहम तरीन मोड़ पर उसे अपनी मंजिल का सुराग मिल चुका था। अब वो हरीम के पहलू में बैठा सुबह के उजाले का मंजर था, ताकि जान सके कि उस अनजान लड़की का उसके खानदान से क्या ताल्लुक है और आखिर ये पुरस्रार मुअम्मा किस तरह हल होता है। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकराकर एक मुसलसल शोर बर्पा कर रही थी, जबकि कमरे के अंदर की फिजा अजलान की बेचैनी से भी ज्यादा बोझिल महसूस हो रही थी। वो अपनी जगह साकित खड़ा हरीम के सर बढ़ते चेहरे को देख रहा था, जिसकी सांसें लम्हा ब लम्हा मध्यम होती जा रही थी। उसने साइड टेबल से फोन उठाया ताकि किसी डॉक्टर को बुला सके, मगर ऐन वक्त पर उसका हाथ रुक गया। वह जानता था कि अगर इस वक्त किसी को यहाँ ले आया तो यह खबर पूरे हयात हाउस में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और वो हरगिज नहीं चाहता था कि हरीम की जात पर कोई सवाल उठे। उसने अपने होंठ भींचे और गहरा सांस लिया। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, मगर कैसे? वो बेख्तियार हरीम के करीब आया और उसके गले के करीब वो तिल तलाश करने लगा, जो बरसों से उसकी यादों में नक्श था। जैसे ही उसकी नजर उससे या तिल पर पड़ी, उसके वजूद में एक झटका सा दौड़ गया। ये वही है। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही लम्हे उसने अपनी फैमिली डॉक्टर जोहरा बेगम को कॉल मिलाई। उनकी आवाज सुनते ही वो बौखला गया। ज़ोहरा आंटी, मेरी एक दोस्त की बेगम बारिश में बुरी तरह भीग गई है। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा है। मुझे बताएं मैं क्या करूं? उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए झूठ का सहारा लिया। तो ज़ोहरा बेगम ने तशवीश से उसकी बात सुनी और बोली, अच्छा सुनो, हालत काफी नाजुक लग रही है। सबसे पहले उसके गीले कपड़े तब्दील करो, उसे गर्म कंबल ओढ़ाओ और जिस्म का दर्जा हरारत बहाल रखने की कोशिश करो, वरना ठंडक से उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उनकी बात सुनकर असलान चंद लम्हे खामोश रह गया। फोन बंद करते ही उसने पेशानी पर हाथ फेरा। क्या ये मैं सब कर सकता हूँ? दिल उसे रोक रहा था, मगर दिमाग मुसलसल उसे हरीम की जान बचाने का कह रहा था। दिलो दिमाग की इसी कश्मकश में घिरा वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने फैसला किया कि हरीम के गीले कपड़े बदलने होंगे। वो अलमारी से अपनी एक शर्ट निकाल लाया। इस वक्त उसका सारा ध्यान सिर्फ हरीम की जिंदगी बचाने पर मरकूज था। कांपते हाथों से उसने उसे खुश कपड़े पहनाए और फिर कंबल अच्छी तरह उड़ा दिया। उसके वजूद से उठती हल्की सी खुशबू और उसकी बेबसी अजलान के दिल में एक अजीब हलचल पैदा कर रही थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया और मुसलसल उसकी हालत पर नजर रखने लगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही और वो लम्हा भर के लिए भी उसके पास न हट सका। कभी उसकी पेशानी पर हाथ रखता, कभी उसकी नब्ज चेक करता और कभी बेख्तियार उसके चेहरे को देखता। फजर की पहली किरण नमूदार हुई तो उसके जिस्म की निलाहट कम हो चुकी थी।
حریم کے خشک ہونٹ دیکھ کر اذلان کا دل بھر آیا۔ اس نے گلاس سے پانی لیا اور احتیاط سے اس کے ہونٹ تر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ تم کب آنکھیں کھولو گی حریم؟ اس نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، مگر جواب میں خاموشی ہی ملی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہو، جس سے باہر آنے میں اسے وقت درکار تھا۔ اذلان نے اس کے سر کو سہارا دیا اور دھیمے لہجے میں بڑبڑایا، تمہاری یہ بے ہوشی بھی مجھے بے حال کر رہی ہے۔ وہ اب خود کو اس لڑکی کے گرد بنتے ہوئے ایک عجیب حصار میں قید محسوس کر رہا تھا، جو اچانک اس کی زندگی میں آ کر سب کچھ بدل چکی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج ایک کمزور اور بے بس لڑکی کی خاطر اپنی ضد، غرور اور انا سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر اسے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش باقی رہ گئی تھی کہ حریم آنکھیں کھولے اور اسے بتائے کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، تاکہ وہ اس ظلم کا حساب لے سکے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا صبح کے اجالے کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور یوں محسوس کر رہا تھا جیسے حریم کی دھڑکنیں اس کی اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہوں۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کے قیمتی ترین لمحوں میں سے ایک تھا، جس میں وہ خود کو صرف اور صرف حریم کا محافظ سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں گہرا سناٹا طاری تھا اور اذلان اپنی جگہ ساکت بیٹھا حریم کے چہرے کو تک رہا تھا، یا یوں کہا جائے کہ وہ اس کے وجود سے جڑے کسی پیچیدہ معمہ کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کچن میں جا کر چند پھل اور کھانے پینے کی اشیاء ایک ٹرے میں سجا کر واپس کمرے میں آ گیا۔ اب اس کے دل میں ایک انجانا خوف جنم لے چکا تھا کہ کہیں حریم کی یہ شدید کمزوری اس کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تو حریم بدستور بے ہوش پڑی تھی۔ اذلان نے نہایت نرمی سے اسے سہارا دیا اور چمچ کی مدد سے اسے سوپ پلانے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا سوپ اس کے ہونٹوں کو چھوتا ہوا اندر اترا تو حریم کی پلکیں ہلکی سی جنبش کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ میری طرف دیکھو اور کچھ کھا لو، ورنہ تمہاری یہ کمزوری تمہیں دوبارہ بے ہوش کر دے گی۔ اذلان کی آواز میں ایسی نرمی تھی جس کا وہ خود بھی عادی نہیں تھا، مگر اگلے ہی لمحے حریم کی پلکیں دوبارہ بوجھل ہو کر بند ہو گئی۔ یا اللہ! یہ کیسی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دیا ہے! اس لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہے اور میری عقل کو بھی۔ اذلان نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور خود بھی تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ صبح ہوتے ہی وہ اس سے تمام حقائق جان لے گا۔ مگر چند لمحوں بعد جب اس نے حریم کو دوبارہ گہری نیند میں ڈوبا دیکھا تو بے اختیار اپنا سر جھٹکا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یہ لڑکی واقعی اس کے دماغ کے تمام فیوز ہلا رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب حریم کی پلکوں سے ٹکرائی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کا اجنبی ماحول دیکھتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے گزشتہ رات کا سارا منظر یاد آ گیا کہ کس طرح وہ بارش میں بھیگتی لڑکھڑاتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ جلدی سے بستر سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف لپکی، مگر پورے گھر میں ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں اپنی تائی کا صفاق چہرہ اور ان کی گالیوں سے بھری آواز گونجنے لگی، اگر آج خالی ہاتھ گھر لوٹی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، مجھے فوراً کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے کمبل ایک طرف کرتے ہوئے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ بے حد خوبصورت اور پرتعیش تھی، مگر وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ اس نے کسی اور کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی دوبارہ اسی کمرے میں واپس آ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ وارڈروب پر پڑی اور اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اتنا امیر گھر ہے، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ ہر خوف اور ہر سوچ بھلا بیٹھی۔ وہ تیزی سے الماری کے پاس گئی اور دیوانہ وار چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگی تاکہ اسے کوئی قیمتی چیز مل سکے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس وقت کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی، اور ضمیر کی آواز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ دوسری جانب اذلان اپنے کمرے میں بیٹھا فون کی اسکرین پر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی چوری کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چاہتا تو اسی لمحے اسے پکڑ سکتا تھا، مگر وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس حرکت کے پیچھے کتنی بڑی مجبوری چھپی ہوئی ہے۔ اچانک حریم کی نظر الماری کے نچلے حصے میں رکھی ایک بھاری باکس پر پڑی۔
तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से बॉक्स खोला और अंदर नोटों के ढेर देखकर उसका सांस एक लम्हे के लिए रुक गया। इतनी बड़ी रकम कि उसकी ताई की सारी जिंदगी की जरूरियात पूरी हो सकती थी। मगर वो लालची नहीं थी। उसने सिर्फ चंद नोट निकाले ताकि ताई का मुंह बंद कर सके। ये मंजर देखकर अजलान हैरत के समुंदर में डूब गया। ये कैसी अजीब लड़की थी जो लाखों रुपए छोड़कर सिर्फ चंद नोटों पर इक्तफा कर रही थी। हरीम ने वो हर रकम अपने दुपट्टे में बांधी और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे हर सूरत अपनी ताई के गैज़ो गज़ब से बचना था। लाउंज में पहुंचकर उसने एक बार इधर उधर निगाह दौड़ाई और किसी इंसान की मौजूदगी तलाश करने लगी, मगर उसे कोई दिखाई न दिया। शुक्र का कलमा पढ़ते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गई। अजलान ने भी खामोशी से अपने गार्ड्स को इशारा किया और दरवाज़ा खुलवा दिया ताकि उसके रास्ते में कोई रुकावट न आए। बाहर निकलते हुए अचानक उसे अपने सर पर दुपट्टे की कमी महसूस हुई, तो वो फौरन वापस पलटी और अलमारी में कोई दुपट्टा तलाश करने लगी। तभी उसके जहन में ये ख्याल बिजली बनकर कौंध गया कि ये घर यकीनन किसी मर्द का है और किसी ने उसके कपड़े भी तब्दील किए हैं। ये सोच आते ही वो अंदर तक हिल कर रह गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी दौरान उसकी नज़र एक कोने में पड़े अपने खुश्क कपड़ों पर पड़ी, तो उसकी नम आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक लौट आई। वो फौरन आगे बढ़ी, कपड़े उठाए और वॉशरूम में दाखिल होगी। चंद लम्हों बाद वो अपने पुराने लिबास में वापस आ चुकी थी। कपड़े किसने और कैसे बदले थे इस वक्त उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। फिलहाल उसके जहन पर सिर्फ ताई का खौफ मुसल्लत था, जो उसके पूरे वजूद में सरायत कर चुका था। वो किसी अजनबी के घर में मजीद एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती थी। उसे बस हर हाल में अपनी ताई तक पहुंचना था। किधर थी तू, हाँ? किसके साथ मुंह काला करके आ रही है? जरा हमें भी तो पता चले। घर में दाखिल होते ही ताई ने हरीम को देखकर तूफान खड़ा कर दिया था। उनकी आवाज में जहर और आंखों में नफरत भरी हुई थी। हरीम ने उनकी बातों का कोई जवाब न दिया, बल्कि खामोशी से अपनी मुट्ठी खोली और पैसों की गड्डी उनके हाथ में थमा दी। आपको पैसे चाहिए थे ना? ये ले, अब मेरा पीछा छोड़ दे। हरीम की मध्यम आवाज सुनकर ताई हैरत से साकित रह गई। उनकी नजरें बार बार नोटों की गड्डी पर जा ठहरती थी। इतने सारे पैसे, आखिर ये कमबख्त इतनी रकम कहाँ से ला सकती थी? उनके जहन में फौरन यही ख्याल आया कि जरूर उसने कोई गलत काम किया होगा। यही सोचते ही उनके दिल में लालच मजीद बढ़ गया और वो मुस्तकबिल के ऐसे ही कई ख्वाब बुनने लगी, जिनमें हरीम उनके लिए दौलत कमाने का जरिया बन सकती थी। दूसरी तरफ हरीम शदीद थकन और कमजोरी से चूर थी। उसने बमुश्किल खाने का मुतालबा किया तो ताई के चेहरे पर खुशी दौड़ गई और वो फौरन किचन की तरफ भागी। आज जिस तरह हरीम ने उनके हाथ में नोटों की गड्डी थमाई थी, उसके बाद वो सारी जिंदगी भी उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाने को तैयार थी, क्योंकि उनके जहन में अब सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अगर हरीम रोज इसी तरह पैसे ला कर दे तो उनकी किस्मत बदल सकती है। दूसरी जानिब बाहर खड़ी गाड़ी में बैठा अस्तान यह सारा मंजर खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से, तशवीश और बेबसी का अजीब इम्तजाज था। क्या ये लड़की वाकई ही से सफाक औरत की बेटी है? ये सवाल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद ही उस ख्याल को झटक दिया। नहीं, वो उनकी बेटी नहीं हो सकती। उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अजलान हयात के वजूद का हिस्सा कभी इतने संगदिल खून से ताल्लुक नहीं रख सकता था। उसका सर बेख्तियार नफी में हिलने लगा। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि जो भी ये औरत थी, वो हरीम को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी और यही हकीकत उसके अंदर आग भड़का रही थी। आखिर वो उसकी हरीम को यूं कैसे इस्तेमाल कर सकती थी? वो औरत कौन थी और हरीम के असल माँ बाप कहाँ थे? उसके जहन में एक के बाद एक सवाल जन्म ले रहे थे, मगर जवाब एक भी नहीं था। सवालात का हजूम था और हर तरफ उलझनों का अंधेरा था। आखिरकार दिलो दिमाग की इस मुसलसल जंग से तंग आकर उसने अपना फोन उठाया और उसे असिस्टेंट को कॉल मिला दी। अगले ही लम्हे उसने हरीम की पूरी जिंदगी की मालूमात निकालने का हुक्म दे दिया, क्योंकि अब वो उससे मजीद इन दरिंदा सिर्फ लोगों के रहमो करम पर छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। मेरे हाथ छोड़ो, ये बदतमीजी बंद करो। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अजलान अपने कैबिन में बैठा पूरी सूरत हाल का जायजा ले रहा था, जबकि उसकी असिस्टेंट हरीम की मुसलसल फरियादों से तंग आकर उसे अंदर धकेलकर खुद बाहर निकल गई थी। तुम चुपचाप अंदर चली जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है।
असिस्टेंट के लहजे में तंबी थी, मगर हरीम ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और झटके से खुद को छुड़वाने लगी। अगले ही लम्हे असलान ने तेजी से उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। कौन हो तुम और किस कदर बेशरम और जालिम हो तुम? वो गुस्से से बोली। पूरा ऑफिस खाली था क्योंकि अजलान का सख्त हुक्म था कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब न करे। जवाब दो, तुम कौन हो और ये सब क्या ड्रामा है? वो किसी भपड़ी हुई शेरनी की तरह धाड़ी, जबकि अजलान उसके सामने खड़ा उसे किसी शिकारी की तरह देख रहा था। उसने आगे बढ़कर हरीम की ठोड़ी थामी और अपनी नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। जानना चाहती हो कि कौन हूं मैं? उसने धीमे मगर पुरस्कार लहजे में पूछा। तो हरीम ने बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया। मैं वही शख्स हूँ जिसके घर से तुम कुछ चुरा कर भागी थी, याद है? या याद करवाऊं? वो उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला। तो उसके नरम मगर खतरनाक लहजे ने हरीम की सांस से रोक दी। वो बेख्तियार कपकपाने लगी और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये शख्स आखिर क्या कह रहा था? दूसरी तरफ फजलान ने उसकी लरसती हुई हालत देखकर अपने तासुरात कुछ नरम कर लिए, क्योंकि उसका मकसद उसे खौफजदा करना नहीं था। देखिए, मेरी बात सुने। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो घबराते हुए अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर असलान ने उसका जबड़ा सख्ती से थाम लिया। वाकई गलतफहमी है या फिर मैं खुद पुलिस को कॉल कर दूं? वो बखूबी जानता था कि सच कैसे उगलवाना है। पुलिस का नाम सुनते ही हरीम की सारी हिम्मत जवाब देगी। क्यों? पुलिस को क्यों? उसने खुश्क होते होंठों पर जुबान फेरते हुए खौफसदा अंदाज में पूछा तो असलान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। फिर बताओ, चोरी क्यों की थी? उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। तो हरीम बेबसी से अपने होंठ दबाने लगी। आखिरकार उसने शिकस्त खोरदा लहजे में सिर झुका दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें मैंने ही ली थी, मगर खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। वो अचानक रोते हुए असलान के सामने मिन्नतें करने लगी, तो असलान खुद बौखला कर रह गया। वो उसे सिर्फ डराना चाहता था, रुलाना नहीं। मुझे पुलिस के हवाले मत करें, मैं मर जाऊंगी। हरीम को अपना अंजाम सोचकर ही मौत याद आने लगी थी। उसके दिल में खौफ इस हद तक भर चुका था कि उसे वाकई लगने लगा था जैसे पुलिस उसे पकड़ते ही फांसी दे देगी। यह ख्याल आते ही हरीम का चेहरा यकदम सर्द पड़ गया, जबकि अजलान गहरी और पुरसोच में नजरों से उसे देखने लगा। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो ये बात कहना तो नहीं चाहता था, मगर न जाने क्यों हरीम की मौजूदगी उसे वो सब कहने पर मजबूर कर रही थी, जो उसने खुद भी कभी सोचा न था। उसके लबों से ये गैर मुतवक्को जुमला बेख्तियार निकल गया, और वो खुद भी हैरान रह गया। क्या आप भी मुझे कोई मुजरिमाना काम करने को कहेंगे? हरीम ने अपनी मासूम और सादा सी सोच के साथ सवाल किया तो अजलान के होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभर आई। नहीं, मेरा इरादा उससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और दिलकश है। बदले में मुझे तुम्हारी कुर्बत चाहिए और तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो कुर्सी पर झूलते हुए बेपरवाही से बोला, तो हरीम के चेहरे का रंग मजीद फक पड़ गया। क्या बकवास है ये? अगले ही लम्हे वो गुस्से से गुड़ाई। उसके चेहरे पर नागवारी देखकर अजलान के दिल को अजीब सा सुकून मिला। ऐसी ही तो बीवी का तस्वुर उसने अपने जहन में बसा रखा था। अच्छा, छोड़ो उसे। अब मेरी एक बात का ईमानदारी से जवाब दो। उसके लहजे में संजीदगी आ चुकी थी। हरीम ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, तो अजलान ने वो सवाल कर डाला जो वो पूछना नहीं चाहता था, मगर फिर भी पूछ बैठा। तुम्हारी माँ कहाँ है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद हरीम ने सट लहजे में जवाब दिया। वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही असलान के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? वो हैरत और कुर्ब के आलम में अपनी जगह से खड़ा हो गया। जी, उनका इंतकाल हो चुका है। हरीम की आवाज में अजीब सी बेहिसी थी, जैसे वो इस दुख को बहुत पहले कबूल कर चुकी हो। और तुम्हारे वालिद? अजलान अब मजीद कोई भयानक हकीकत सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। वो भी मुझे बहुत पहले छोड़ गए थे। हरीम ने मुख्तसर जवाब दिया तो अजलान का दिल बुरी तरह डूब गया। फिर तुम किसके पास रहती हो? अब उसे अपनी ही आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। ताई के साथ। उसने कंधे उचकाते हुए सादगी से जवाब दिया तो अजलान के मुंह से बेख्तियार निकला। ओह ताई! अगले ही लम्हे उसके जहन में उस औरत का चेहरा घूम गया और वो अपने बाल नोचने के करीब पहुंच गया। तो ये सब कुछ उस औरत का किया धरा था।
वही हरीम से ये सब कुछ करवा रही थी। वही उसे मजबूर करती थी और वही उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाए बैठी थी। अब अज़लान को हरीम की हर गलत कदम के पीछे छुपी मजबूरी समझ आ चुकी थी। उसका दिल गुस्से और कर्ब से फटने लगा। कितनी आज़माइशें और कितने दुःख देखे थे उस लड़की ने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में। इन दरिंदों को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूँगा। वो गुस्से से लाल होते हुए धारा तो हरीम उसकी आवाज़ सुनकर खौफ से उछल पड़ी थी, मगर अज़लान के डरने की परवाह किए बगैर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उसका हाथ मज़बूती से थामा और उसे अपने साथ लिए सीधा हवेली की जानिब रवाना हो गया। हवेली के वसी हाल में जैसे क़यामत बर्पा हो गई थी। अज़लान के ये अल्फ़ाज़ कि हरीम मेरी मनकूहा है, वहाँ मौजूद हर शख्स के असाब पर बिजली बनकर गिरे थे। खुद हरीम भी अपने कानों पर यकीन करने से कासिर थी कि वो जो सुन रही है वो ख्वाब है या हकीकत। जी हाँ, ये सच है और बाबा और चाचू इस बात के गवाह हैं। अज़लान ने निहायत संजीदगी से कहा और अचानक अपने बाप और चचा को भी इस तूफान का हिस्सा बना दिया। दोनों उसे हैरत और बुखलाहट से देखने लगे। क्या कह रहे हो तुम? हम कब गवाह बने? दोनों ने घबराकर इनकार करना चाहा, मगर अज़लान की गहरी और वार्निंग देती नज़रें उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर गईं। क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इसकी बात काटी, तो वो पूरी हवेली में मज़ीद बड़ा हंगामा खिड़ सकता था। कासिम शाह ने अपनी बीवी की शिकायती नज़रों को अपनी तरफ उठते देखा तो एक गहरा सांस लिया और माज़ी के बंद दरीचे खोलने लगे। बरसों पहले मेहरीन हमारे पास आई थी। वो बुरी तरह रो रही थी और हरीम भी उसके साथ थी। उसका कहना था कि उसका शौहर नशे में इस कदर डूब चुका है कि किसी भी वक्त अपनी बेटी का सौदा कर सकता है। उसने अपनी झोली फैलाकर मुझसे हरीम के लिए अज़लान का हाथ मांगा था, क्योंकि उसे सिर्फ मेरा घर ही महफूज महसूस होता था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं इनकार न कर सका और उसी दिन मैंने अज़लान को स्कूल से बुलवाकर उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया था। कासिम शाह की आवाज़ भर आ गई थी। मेहरीन के जाने के बाद मैंने अपने आदमियों को उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया था, मगर उसकी ज़िद थी कि वो हवेली में कदम नहीं रखेगी। फिर एक दिन वो मेरे आदमियों की नज़रों से इस तरह ओझल हुई कि आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं, जबकि हाल में मौजूद हर शख्स साकित और जामिद उनकी बातें सुन रहा था। पूरा माहौल सोगवार हो चुका था। दीजान हरीम को सीने से लगाए रो रही थी, क्योंकि वो इनकी महरूमा बेटी की आखिरी निशानी थी। तुम सब उससे अच्छी तरह मिलो और उसका ख्याल रखो। मैं अभी उसके दुश्मनों से हिसाब चुकता करके आता हूँ। अज़लान ने सर्द लहजे में कहा तो हरीम फौरन बोल उठी, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिएगा। उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। उसकी मासूम बना बात सुनकर अज़लान के अंदर गुस्से की एक नई लहर दौड़ गई। उसे हैरत थी कि ये लड़की अब भी अपने दुश्मनों का दिफा कर रही है। हाँ, जैसे पाला है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। साफ नज़र आ रहा है कि कैसे पाला है। वो तंज़िया अंदाज में बोला और बगैर किसी को मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए वहाँ से निकल गया। हरीम की नज़रें देर तक उसके जाते हुए वजूद का ताक़ुब करती रहीं। एक बात जो उसके दिल को गहराई तक छू गई थी, वो ये थी कि अज़लान ने सबके सामने उसके चोरी करने का ज़िक्र तक नहीं किया था। उसने उसकी इज़्ज़त रख ली थी। यही सोच ना चाहते हुए भी हरीम के दिल में एक अजीब-सी सरशारी और सुकून भर गई थी। रात के दूसरे पहर जब अज़लान हवेली वापस लौटा, तो हरीम लाउंज में उसकी मुंतज़िर खड़ी थी। उसकी आँखों में जागने की थकन और चेहरे पर इंतज़ार की वाज़ेह झलक नुमायाँ थी। शुक्र है भाई आप आ गए, वरना हरीम तो आपके इंतज़ार में पत्थर बन चुकी थी। नूर की चहकती हुई आवाज़ सुनकर अज़लान की नज़रें फ़ौरन हरीम पर जा ठहरीं। चवाके नींद और थकन से निडाल दिखाई दे रही थी, मगर हरीम के लबों से निकलने वाला पहला सवाल उसका सारा सुकून बर्बाद कर गया। वो लोग कहाँ हैं? आपने उनके साथ क्या किया? उसके अल्फाज सुनते ही अज़लान के अंदर जैसे गुस्से की एक लहर दौड़ गई। दिल तो चाहा कि उसे फ़ौरन झिड़क दे, कि उसे अब भी उन्हीं लोगों की फ़िक्र है, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। शौहर थका-हारा घर लौटा था, मगर मजाल थी जो उसने उसकी खैरियत तक पूछी हो। नहीं, उसे तो अब भी उन्हीं दरिंदों की फ़िक्र खाए जा रही थी। देता हूँ जवाब, बल्कि ऐसा करो, मेरे कमरे में आओ, वहाँ तुम्हें हर जवाब मिल जाएगा। अज़लान उसके करीब से गुजरते हुए धीमे लहजे में सरगोशी करके सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। नूर, मेरे बच्चे, खाना भाभी के हाथ से मेरे कमरे में भिजवा दो। उसने पीछे मुड़कर मोहब्बत से नूर के सर पर हाथ रखा और हुक्म दिया, तो हरीम का चेहरा यकदम शर्म से सुर्ख हो गया। जी भाई, अभी भिजवाती हूँ।
नूर ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया और फिर मायने खेज नजरों से हरीम को देखा। ओए होए, रूम में खाना? वो जानबूझकर शरारती अंदाज में बोली। तो हरीम उसे घूर कर रह गई। नूर हंसती हुई किचन की तरफ भागी, जबकि हरीम वहीं चंद लम्हे साकित खड़ी रही। उसके कदम बोझल थे, मगर असलान के हुक्म की तामील किए बगैर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरी तरफ असलान बखूबी जानता था कि हरीम को कैसे अपने दायरा इख्तियार में लाना है, और उसे यह भी एहसास था कि आज की रात बहुत कुछ बदलने वाली है। हरीम अपने सीने में धड़कते दिल को संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता असलान के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जबकि उसके दिल में बेशुमार सवालात और अजनबी सी घबराहट, एक अनजानी सी घबराहट जन्म ले रही थी। चंद लम्हों बाद हरीम खाने की ट्रे संभाले असलान के कमरे में दाखिल हुई। दरवाजे पर दस्तक देना तो गोया उसकी आदत में शामिल ही नहीं था, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी तमीज और तहजीब के ये आदाब सिखाए ही नहीं गए थे। हरीम का यूं बेबाक अंदाज में कमरे में दाखिल होना असलान को अच्छा लगा, और उसने उसे सताइशी नजरों से देखा। खाना वहां टेबल पर रखकर मेरे पास आओ। हरीम अभी तक ट्रे थामे खड़ी थी, तो असलान ने इशारे से उसे टेबल की तरफ मतवजो किया। ठीक है, अभी रखती हूँ। उसने इस बात में सर हिलाया और ट्रे टेबल पर सजा दी। उसने दिल ही दिल में अजलान की हर बात मानने का फैसला कर लिया था। अब बताएं, मेरे ताया और ताई कहाँ हैं? आपने उनके साथ क्या किया? वो किस हाल में है? आपने उन्हें मारा तो नहीं? वो एक ही सांस में कई सवाल कर गई, तो अजलान उसे देखता रह गया, जो सवालात की बुछार करते हुए सांस लेना भी भूल गई थी। पहले सांस लो लड़की, वो धीमे लहजे में बोला, और अगले ही लम्हे एक जुस्त में उसे अपनी तरफ खींच कर अपनी गोद में बिठा लिया। वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर उन्हें आखिरी बार माफ कर दिया है। लेकिन अगर दोबारा उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो फिर तुम्हारे कहने पर भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने उसके गालों से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। तो हरीम के दिल का सारा बोझ एक लम्हे में हल्का हो गया। आपने वाकई उन्हें माफ कर दिया? वो उसकी गुर्बत भूलकर खुशी से चमकते लहजे में बोली। तो अजलान ने ताज्जुब से सर हिलाते हुए इस बात में जवाब दिया। हाँ, माफ कर दिया है, मगर ये भी वासिया कर दिया है कि आइंदा अगर उन्होंने कोई गलती की तो तुम्हारी लाख मिन्नत समाजत के बावजूद मैं उन्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसकी गंभीर आवाज सलीम के कानों में उतरी, तो उसने खामोशी से अपने लब भींच लिए। जब मैं ही उनके पास नहीं रहूंगी, तो वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत कैसे करेंगे? हरीम ने उदासी और समझदारी के मिले जुले तासुरात के साथ जवाब दिया, तो अजलान ने दाद देते हुए आईब्रो उचका दिए। तुम वाकई ही बहुत समझदार हो। वो उसकी आज़र दिमागी की तारीफ किए बगैर न रह सका। लेकिन अजलान, अब वो अपने घर का खर्चा कैसे पूरा करेंगे? हरीम ने उसकी गुर्बत को नज़रअंदाज करते हुए फिक्रमंदी से पूछा, तो अजलान के हाथ में मौजूद निवाला वहीं रुक गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक करते आए हैं। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए और निवाला उसके मुंह के करीब किया, जिसे हरीम ने बिला झिझक कबूल कर लिया। लेकिन पहले तो मेरा घर मेरी चोरियों से ही चलता था। हरीम ने इंतहाई मासूमियत से ये बात कही, तो अजलान का जोरदार कहका कमरे की फिजा में गूंज उठा। क्या तुम सच कह रही हो? अपनी जिंदगी में उसने ऐसी बेबाक लड़की कभी नहीं देखी थी, जो चोरी करने के बाद इतने फख्र से उसका एतराफ भी कर रही हो। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। पहले मेरा घर तो मेरी ही कमाई से चलता था। हरीम ने इतराते हुए अपनी कारकर्दगी बयान की, तो अजलान बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करने लगा। ये वाकई ही अजीब बात थी कि वो अपने जुर्म का एतराफ ऐसे कर रही थी, जैसे कोई काबिल फख्र कारनामा बयान कर रही हो। अब भी तुम्हारा घर तुम्हारी ही वजह से चलेगा, क्योंकि अब तुम मेरी बेगम हो। मैं तुम्हारी खातिर हर माह उन्हें इतनी रकम भिजवा दिया करूंगा कि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अजलान ने निहायत नरमी और मोहब्बत से ये अल्फाज उसके कानों में सरगोशी की तरह अदा कर दिए थे, तो हरीम का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। उसने पहले तो दिल से उसकी तारीफ की, मगर फिर अपनी मासूम अकल के मुताबिक एक और सवाल दाग दिया। लेकिन सिकंदर, वो इतनी सारी रकम वसूल कैसे करेंगे? अजलान ने निवाला मुंह में डालते हुए उसकी तरफ देखा। कभी वो इतनी समझदार बातें करती थी कि इंसान हैरान रह जाते, और कभी ऐसी मासूमियत दिखाती कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है मेरी जान। तुम बस अपनी साथ और मेरी मोहब्बत पर तवज्जो दो।
ازدان نے گہری آواز میں کہا تو حریم کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے رخساروں پر ابھرتی ہوئی حیا کی سرخی ازلان کو اس قدر دلکش لگی کہ چند لمحوں کے لیے وہ خود بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ عریش آخر کیوں اس قدر ناراض بیٹھا ہے؟ کیا ہوا ہے یار؟ ازلان کافی دیر سے اسے منانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ عریش کے نخرے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اوہ تو اب آخر تمہیں میری یاد ستانے لگی ہے؟ عریش نے کرارے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا تو ازلان آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور اپنے بازو اس کے گرد حائل کر دیے۔ میں تمہیں بھلا سکوں ایسا ممکن ہی کب ہے جو تم یہ شکوہ کر رہے ہو؟ ازلان اسے منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عریش اس سے کتنی گہری ناراضگی کے لیے بیٹھا ہے۔ یار دیکھو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ اتنے طویل عرصے کے بعد مجھے ملی ہے اور اسے میرے ساتھ مانوس ہونے میں وقت درکار ہے۔ اسی لیے میں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہوں تاکہ اس کی اجنبیت ختم ہو سکے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں۔ ازلان نے پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی تو عریش شاہ نے مڑ کر اس کی جانب آنکھوں میں دیکھا جہاں گہرا پیار، اپنائیت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ تم مجھے کبھی نظر انداز تو نہیں کرو گے نا؟ نہ جانے کیوں عریش کے دل میں ازلان کی توجہ کھو دینے کا ایک عجیب سا خوف اور بے چینی جنم لے رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میرے دوست؟ کیونکہ اگر تم میری زندگی سے نکل گئے تو میرے وجود میں باقی کیا ہی بچے گا؟ ازلان جذباتی ہوتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت اور سچائی تھی جس نے عریش کے دل کی ساری کدورت ایک لمحے میں دھو ڈالی تھی۔ عریش نے سکون بھرا ایک طویل سانس لیا اور اپنی آنکھیں موندتے ہوئے ازلان کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ وہ اس شخص پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھا کیونکہ ازلان صرف اس کا کزن ہی نہیں بلکہ اس کا سب سے بہترین، مخلص اور وفادار دوست بھی تھا۔ ان کے رشتے میں ایک ایسی مضبوطی، خلوص اور تقدس تھا جسے کوئی غلط فہمی، کوئی دوری اور کوئی آزمائش کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ چلو اب اندر چلتے ہیں ورنہ سب ہمارا انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے، ازلان نے نرمی اور شفقت سے کہا تو عریش کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے ہی لمحے دونوں دوست ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے حویلی کی جانب بڑھ گئے جہاں ان کے اپنے، ان کی خوشیاں اور آنے والے خوبصورت دن ان کے استقبال کے منتظر تھے۔ یہ لمحہ ان کی دوستی کی ایک نئی داستان رقم کر رہا تھا، ایک ایسی داستان جس میں اب نہ کوئی شکوہ باقی تھا، نہ کوئی گلہ اور نہ ہی کسی دوری کی گنجائش۔ ان کے درمیان موجود اعتماد، محبت اور رفاقت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اور شاید یہی کسی بھی خوبصورت رشتے کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔